हेलो रेणुका। हेलो रेणुका। क्या क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ
हाँ ना आवाज येईना ना काहीच. तुम्ही केलं का जॉईन? हॅलो. हॅलो. सध्या तो एक लावून घेऊ. Hello all. Hello. Amol sir, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So on behalf of Maharashtra Chamber and Jugaad Funda, I welcome you all for this session. So we are just waiting for other participants to join in. We will start the session very soon. Okay, within 2 to 5 minutes, all the participants are joined. Okay. To that the program. Yes. Oh.
Hello. All the participants are requested to you. Please unmute yourself. Yes, sir. रात्री आपाची टाका गाडीवर एकदा किंवा Hello, I request all the participants to mute yourself. Once the question answer session will be started, or as we will be instructing, then you have to unmute yourself. We are waiting for actually 150 to 200 student participants are expected today. 28 have joined in. We are waiting for other participants to join in. So very soon we will be starting with the session. Manish sir. Very good afternoon to all. Welcome you all from Maharashtra Chamber of Commerce, Industries and Agriculture and Scientific Jugaad Funda. We welcome you all to this today's session and the induction program. We are awaiting all the students to join in, and as soon as the students will join, we will begin with this session. Archana madam, I think we have total around 50 to 55 participants. So I believe as soon as we have reached almost up to 41, 45 participants. So I think we can begin once we cross this number. I request the students and the faculty to please check, inform other students to join in so that we can start with the session. Okay, sir.
Archana ma'am, so at what time Shubhagya madam, any idea, any input? Yes, so Shubhangi ma'am, she will be joining us at 4 p.m. Okay, okay, So we will be starting with the sequence of session will be we will be starting with the poll, okay. followed by the presentation by Yeah, you. yeah, yeah. Okay, okay. On behalf of Maharashtra Chamber of Commerce, Industries and Agriculture and Scientific Jugaad Funda, we welcome all the students who are there. The agenda for today's session is you all are, joining your graduation degree program. So at the end of 4 years, you are looking at some job opportunities or, startup opportunities. So possibly how best you can use your time, the money by your parents and your time. So we will be having a small discussion to provide you guidelines and inputs in that direction. Sir, we will launch the poll at 3:10. So Okay. 2 minutes more we will wait for participants to join in. Yes, yes. I understand we have students from High Tech Institute of Technology, Aurangabad, and Sri Jai Kumar Rawal Institute of Technology, Dondaicha. Yes, sir. If there are any faculty members present from that institute, we request you to please communicate your name in the chat box so that we can, make you a co-host, and then, we can have small discussion with you during this session. So if there are any faculty members present from both these institutes, High Tech Institute of Technology, Aurangabad, and Sri Jai Kumar Rawal Institute of Technology, Dondaicha, I request them to please send us a message in the chat window. Help us to identify yourself so that we can make you the co-host. Okay, so Siddiqui sir, okay, fine. Let me find out. Okay. Acha, Sadiq Ansari sir, 1 minute. So Archana ma'am, can you make sir as a co-host, please? You are a host, so you can make Sadiq Ansari sir as a co-host. Yes, sir. Okay, no, he is not sir. Sadiq Ansari is not sir. Okay, thank you, Sadiq. Sir, from High Tech Institute, Professor Bhavna Pingai ma'am is present. Okay. So I will make her the co-host. Yeah. Welcome, Bhavna ma'am. Thank you for your participation along with your students to this session. And since you are experienced faculty, we also would like you to ask us questions, and maybe students themselves many times are hesitant to ask the questions, but we welcome your questions on behalf of students, and we'll be very happy to answer all those queries. Also, at the end of the session, we will have a small discussion with you about what all are your expectations from the industry associations.
So if you have any inputs, it will help us to deliver our session correctly. So I request Bhavna Pingle madam, if you can unmute yourself and just let us know a few of the expectations from your side, for the students. तुम्ही तुमच्या जर expectations सांगितल्या तर आम्हालाही हे सेशन थोडंसं अरेंज करताना सोपं पडेल. सो भावना मॅडम तुम्ही अनम्यूट करू शकाल का? हॅलो. हा यस मॅडम, नमस्ते. हा नमस्कार सर. येस सर मी थोडा वेळ डिस्कनेक्ट झाले होते, प्लीज मला सांगता का परत एकदा? हो हो हो. हा जो इव्हेंट आहे हा महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणजे महाराष्ट्राची अपेक्स इंडस्ट्री चेंबर आहे त्याच्यातर्फे आयोजित केलेला आहे. तर अकॅडमिक इन्स्टिट्यूट म्हणून इंडस्ट्री चेंबर कडून किंवा इंडस्ट्री कडून तुमच्या काही अपेक्षा आहेत का? आर यू एक्सपेक्ट also to support, participate, so that the purpose of education can be served. So तुम्हाला त्यांच्यासाठी काही मेसेज द्यायला आवडेल का? Because we are representing those industry association, we will convey your message to those industries and we will see what best can be done. त्यामुळे तुमच्याकडून काही इनपुट असेल तर ते आम्हाला ऐकायला आवडेल. ओके ओके सर. सर actually the syllabus design is on the basis of all the old machineries. If the teaching is done on the basis of the requirement as per the industries, then it is beneficial for the students. Okay, okay. So मला जे समजलं, what I understood is whenever we are delivering our program, our courses, many times we have to use certain old machines. But if it is possible that some industries can come forward, they share their resources, they are open to allow the students to use some of their machine, then it can be beneficial for the students. Because then when they complete the graduation, they will be actually having a knowledge and the skill of existing technology. So I understood this thing correctly? Yes sir. Okay. Yes, sir. So surely that care we are taking, and I will update you during the session that how we are doing this particular part correctly. Okay, so we definitely will update. We have well noted your point. Would you like to suggest any more or any additional suggestion apart from this one? This is one of the input. We appreciate. Thank you very much for giving this suggestion. Any other suggestion? Any other input, ma'am? No sir, thank you. We can take it from students also. Okay. Hello? No problem. Thank you very much. And anytime in between you feel you would like to suggest something, ask something, feel free Okay, to open up your mic and you can ask in between. Okay sir, thank you. Manish sir, so it is 3:15, so we will be launching the poll. So this poll comprises of 9 questions, wherein we are willing to understand the psychology of our participants, that what they think about their future, how they have planned for their career and all. So I will be launching the poll. So just Yes. I wanted to ask that the poll is visible to everyone. Yes, I understand the poll is visible to everyone. If you can respond in the chat window, it will really be good. Yes. This is a very simple poll. Very first question is, do you really think the money invested by your parent and your time, is it important for you? That's what is the first question. If you agree that money and time is important, you can agree yes. If you feel that no, it is not important, you can say no. If you don't know, you can just say that. Then what we want to know is why you are investing your time and money in education. Okay, what do you think about it? Okay, do you want to do a job or a business, or no, you want something to do something different? So that's what. Then when you have decided to take admission to this particular program, have you really talked with previous batch students? Do you know them? Do you know how they have used their knowledge? How they are working with any company? How much useful was the knowledge for them while working?
Then have you really done study about how many courses, what all are the subjects you will be studying, their usage in the industry? Have you done this homework? So we want to know that. And the fifth question is, do you think that your theoretical knowledge and degree certificate is only enough? That means as soon as you get a degree certificate, you will get a job. If you feel yes, say yes. If you feel that no, it's not enough, then say no. Okay. Then the sixth question is, what is your first choice, after completing of graduation? Do you want to start a business, or you want a job, or right now you don't know? So we would like to know about this particular part. Then the seventh question is, degree or theoretical knowledge is not enough, and it is must for you to have connection with the real industry, and you would like to learn from the experiences of industry. So what do you think? That's what is about seventh question. Then the eighth question is, how do you think about ability to put a hard work? Do you think that hard work is required, or no, just like doing anything can serve the purpose? And then the ninth question is, do you really think if the Maharashtra Chamber or our associated industry associations, they are coming out with the internship program, do you think it is important for you to have the industry internship so that you can gain that experience, you can gain that knowledge, and it can be useful either to start your business or to find the right job? So these are all the questions. And I want a maximum of the students to participate, because based on your feedback or based on this poll, it becomes easy for us to have this session or discussion that can be taken ahead. So this poll will be on for another, couple of minutes. We can see over here almost 18, 20, 25 students are approaching this particular poll. I request remaining students to please participate, because the certificates or participation appreciation will be given to the students who are going to be part of this poll. It is very easy. There are hardly 9 questions. You will have to just tick mark on yes, or I don't know, or no. Any one option you will have to read, and you will have to answer correctly. And that will help you also to receive a certificate from Maharashtra Chamber of Commerce, which can be useful for you at the later, and it can add value to you. So I just request maximum of the students to please come forward and participate in the poll. We expect at least 70%, 80% students to participate in the poll. We cannot close the poll, because till that time the system will not be able to go ahead. So right now there are almost 20 students have completed the poll. We request all the students to kindly respond to the poll so that we can take this session ahead. Manish sir. Yeah. I have actually some technical issues from my end for sharing the presentation. No, I will be sharing from my side. Okay. And before starting the session, I request you to kindly brief yourself introduce yourself and then start with the session. Okay. Yeah, student, please, we have 1 more minute. There are many students who are approaching to the poll. Those who have joined newly, I request all of them to poll on your screen. We expect maximum of the students to participate into this poll. This will help us to understand your thinking, your thought process, and you can fetch maximum benefits from this particular session.
Archana ma'am, we will wait for 1 minute 30 seconds now, and then we will close the poll. Whatever students participated are okay, we will issue the certificates to them. Those who were not able to approach, it is fine, no problem. Okay, But we will go ahead after 1.5 minutes. okay. We appeal maximum students to participate into this poll, please. Yes, we have crossed that minimum level of 60%. We have got 65% to 70% students. They have responded to this poll. I think 30% maybe they are not willing or there is a technical problem, but at least maximum students have, majority of them have participated. So another 40 seconds and we will be closing the poll. Yes, sir. Oh, madam, I have received just one request from a student that he's just attempting, give another 1 minute. So it is 7:30, 7 minutes. We'll give just Okay. 1 more minute Yes. so that that student can complete the poll. So 1 more minute. I request those who are attempting to finish up the poll so that we can end the poll, we can share the results and then we can take it ahead. Yeah, thank you. I think that student has completed and we have now 70% of the student who had, responded for the poll. Okay. So within few seconds, I will be ending this poll and share the Yeah, result with yeah. all our participants. Yes, please. Yes, I'm ending please. the polls. Yeah. Yeah. Result is getting shared. Yes, yes. Result is getting shared. So I'll just summarize this particular result. And before I go ahead, I can just request students, please let me know which language is preferred, whether it is Hindi, English, or Marathi, or combination of all. Accordingly, we can do the needful. So in the chat window, if you can specify, one is Hindi में भी बात करेंगे. English is a business language, so हम हिंदी और English दोनों language में बात करेंगे. And if any other, yes, got you. Thank you very much. ठीक है. हम हिंदी में ज्यादातर बात करेंगे, राष्ट्रभाषा है, और इंग्लिश समटाइम्स सारी चीजें हिंदी में बात करना शायद मुश्किल हो सकता है, उस वजह से कुछ जो शब्द है वो मुझे इंग्लिश में ही बात करने पड़ेंगे. सो हिंदी एंड इंग्लिश इज फाइन. आई थिंक आई हैव गॉट द इनपुट. थैंक यू ऑल फॉर योर फीडबैक. थैंक यू वेरी मच. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो सवाल था कि हम जो वक्त बिताने वाले हैं 4 साल, और हमारे जो पेरेंट्स हैं जो इसके लिए मनी या पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारे लिए बहुत कीमती है. सो ये आपका फीडबैक है. सो मैं समझता हूं कि इसी वजह से आप मेहनत भी करना चाहोगे. देन दूसरा सवाल भी बहुत सीधा था, क्लियर है. थैंक यू. ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हैज रिस्पॉन्डेड कि यस, मुझे या तो अच्छी जॉब की जरूरत है या तो मुझे मेरा बिजनेस शुरू करना है. कम से कम 66% बच्चों का ये है कि मैंने उन बच्चों से या उन स्टूडेंट से बात करी है जिन्होंने पहले ये कोर्स किया था, और मुझे पता है उन्होंने किस तरीके से ये जॉब मिला है, उन्होंने और एडिशनल क्या क्या चीजें करी है. सो you have answered this one, and I'm happy कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या है, हम इसमें क्या पढ़ना चाहते हैं. मेरी आपसे एक विनती है, आप जस्ट अगर आपके पास पेन और पेपर है तो लीजिए और कोशिश कीजिए कि
वो कौन सी 25 कंपनीज है जहां पे आप जॉब करना चाहते हो। अगर आप उन 25 कंपनियों का नाम लिख सकते हो और आपको पता है कि आपने जिस डिसिप्लिन में एडमिशन लिया है उस डिसिप्लिन के नॉलेज की वजह से आपको उन 25 कंपनियों में जॉब मिलने की संभावना है, तो ही मैं एग्री करूंगा कि आपने जो आंसर यस लिखा है वो सही है। अगर आप उस 25 कंपनियों का नाम नहीं लिख सकते हो तो इसका मतलब आपने स्टडी नहीं किया है कि मेरा कोर्स क्या है, उसके सब्जेक्ट्स क्या है और उसका रिलेशनशिप उस इंडस्ट्री के साथ क्या है। सो जस्ट चेक आउट वन मोर टाइम। पांचवा जो सवाल था कि आप क्या करना चाहते हो, कि आपके लिए जॉब जरूरी है। सॉरी, पांचवा सवाल ये है। ओके, I will speak slowly. I just request you also to check your internet connection. Somebody had told me that he cannot hear my voice, but I request you also to check your internet connection. I think most majority of the students are able to hear me clearly. So Archana ma'am, Yes, are you sir. able to hear the Uh, voice? Yes, sir, Yeah. you are very much clear and audible. So I request the participants, those who are not able to hear, kindly check at your end because sir is very much audible. Yeah. So theoretical knowledge or degree certificate is enough to give a degree or start a business. So today, dear students, the situation is that we do not have the industries who only are requiring a degree certificate. The degree certificate is important, no doubt about it. लेकिन उनको ये चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग चाहिए, एंड दे वांट द स्टूडेंट्स नॉट ओनली आंसर प्रोवाइडर्स। वो जवाब देने वाले बच्चे नहीं चाहिए, उनको उसका समाधान देने वाले, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले बच्चे चाहिए। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरी बात ये है कि आज अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में वी हैव 4 करोड़ के करीब इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन अगर आप हमारी पॉपुलेशन देखेंगे तो हम करीबन 40 करोड़ या 50 करोड़ के आसपास के हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये टोटल तादाद है जो 17 से लेके 23 या 28 उम्र के बीच में है। वी आर गोइंग टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। ओके, सो सचमुच जॉब्स इतने अवेलेबल नहीं है। आप चाहते हो कि जॉब मुझे मिलना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, everybody feels that, but please understand जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, बिकॉज सारे लोग जो जॉब मांग रहे हैं, अगर जॉब क्रिएट करने वाला कोई नहीं होगा तो हम ये जॉब क्रिएट नहीं करेंगे तो जॉब नहीं मिलेगा। सो दिस इज एन हाई टाइम कि हमें अभी जॉब सीकर के मोड से, मतलब जॉब मांगने वाले लोगों में से हमें शिफ्ट होना चाहिए कि जो जॉब क्रिएट करेंगे। उसके लिए जो भी आपको मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, महाराष्ट्र चेंबर है, साइंटिफिक जुगाड़ फंडा है, वी विल बी एबल टू सपोर्ट यू फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। एंड सातवां सवाल सब लोगों ने जो दिया है वो वही पांचवें सवाल का अलग इंटरप्रिटेशन था कि आई थिंक ओनली डिग्री और थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ एंड आई मस्ट कनेक्ट विद द इंडस्ट्री। और यही हमारे लिए जरूरी था। अगर आप चाहते हो कि इंडस्ट्री से कनेक्ट होना है तो इंडस्ट्री भी तैयार है आपको एंटरटेन करने के लिए कॉलेज के जरिए, और हम उस कॉलेज के बच्चों को इंडस्ट्री कनेक्ट इंटर्नशिप है, इस तरीके की जो योजनाएं हैं, वी वुड लाइक टू टेक इट अहेड विद द इंस्टीट्यूट हु विल बी कोलैबोरेटिंग विद महाराष्ट्र चेंबर। ये नॉन कमर्शियल एमओयू है इंस्टीट्यूट का चेंबर के साथ, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं इंस्टीट्यूट के लिए। सो अगर ये इंस्टीट्यूट चाहता है तो अपने बच्चों के लिए ये सुविधा वो उपलब्ध करा के दे सकते हैं। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट के जरिए नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट्स आल्सो कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम डायरेक्टली, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीजें हमें आपसे समझनी थी। क्या आप इसकी उम्मीद रखते हो? क्या आप सचमुच चाहते हो कि इंडस्ट्री के साथ काम करना है? तभी जाके फिर हम कुछ कर पाएंगे। सो आई कैन सी ऑलमोस्ट 95% ऑफ द स्टूडेंट are willing to do that. So thank you for sharing your opinion, your poll, and now we are taking the things ahead. So ma'am, I think I can close this particular poll. Yeah. Yes, sir. So now what I will do is I'll share one small presentation. So is the screen visible, Archana ma'am? So it is getting shared, not yet. It has started screen sharing. Its screen is not visible yet.
Yes, now it is. Okay. And now I am going ahead with the full screen presentation. So just let me know if this full screen presentation is visible now. Yes, it is full screen now. Okay. So now this is the agenda for today's session. There are only 10, 12 slides. And it is an chamber of the state. Hello, sir. Okay, so for today's session, we have two mentors. One is the director of Jugaad Funda Innovations, Manish Patil, sir. He has more than 24 years of experience. Sir, kindly disable the annotation part. Yeah. I'll stop sharing and I'll share one more time. Yes, sir. So for today's session, we have two mentors. One is Manish Patil, sir, who has more than 24 years of experience. He was into academics and he has also dirtied his hand with 6 startups, which was 7th one was the successful startup. And he is a right person to share his experience about if you want to get transformed from job seeker to job creator. And our second mentor, she will be joining soon by 4 p.m. Mrs. Shubhangi Tirodkar ma'am. She has 32 years of experience. She is Vice President of Maharashtra Chamber, Women Entrepreneurship, Experiential Learning expertise she has. She is expert in product innovation and marketing, senior expert conceptual learning and strategies, and many more to come ahead. So over to Manish sir. Yes. Yeah. So about myself, what I will do is I'll just share with you, after doing my engineering, I was, working for many industries as well as academia. And this is the product which I was able to manufacture. I failed 6 times creating my own startup. But in the 7th attempt, I was able to introduce this particular product in the market. And today, in the complete country, I am the only person who is manufacturing this particular product. This particular product is magnifying loop and LED headlamp, which is helping dentists and surgeons to maintain their posture correct. So they suffer with the back pain, neck pain, aerosol contamination, पीठ में दर्द होता है, neck में दर्द होता है. लेकिन ये device पहनने के बाद the dentist will be able to operate in the correct posture. So उसको bend नहीं होना पड़ता, उसको neck या जो ये जो हड्डी है वो bend नहीं करनी पड़ती. So they are able to use it. So we are manufacturing it at the cost of around 18,000 to 20,000, and we are selling it at the price of around 72,000. Now there are so many things available. We have sold almost around 600 units in the country till date. And ये लेकिन आसान नहीं था, but then if आप लोगों में तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि ज्यादा क्षमता है, आप इससे भी अच्छी चीजें कर सकते हो. So आज का जो सेशन है, there I would like to share कि इंडस्ट्री को जरूरत किस चीज की है, वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, और आप इसे इस उम्मीद पे खरा उतरने के लिए आप क्या क्या एफर्ट कर सकते हो. So I will now share this particular presentation to all of you. It will take hardly 10 minutes. लेकिन उसके बाद जो है, we will be having question answer session, because we are not here to share and just discuss and present the PPT from our side, but we will be we are here to discuss the things with you, answer your queries. So we are from Maharashtra Chamber of Commerce, Industries and Agriculture. And this is an 97-year-old entity founded by Seth Walchand Hirachand. इसके करीबन 5 लाख इंडस्ट्री मेंबर्स हैं, एंड हमने उनसे काफी सारे इंडस्ट्री से बात करी है, एंड वी नो व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, उनके नीड क्या है, उनके रिक्वायरमेंट क्या है, वो इन फ्रेश ग्रेजुएट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. क्योंकि हमने जब उनसे बात करी तो उनका एक ये था कि भाई मैंने 200 बच्चों का इंटरव्यू लिया, लेकिन मुझे उसमें से 2 ही बच्चे ऐसे मिले जिनको मैं लेके काम कर सकता हूं. तो हमने पूछा कि आपने क्या सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने पूछा कि बच्चे ये सोचते हैं कि वो कोई बुक पढ़ ले, कोई किताब पढ़ ले, मेरे से सवाल पूछ ले और वो उस सवाल का आंसर या जवाब बाय हार्ट करके आ जाएंगे तो वो क्लियर कर पाएंगे. लेकिन ऐसे नहीं है.
मेरा सबसे पहला सवाल रहता है उनसे कि आप खुद के बारे में थोड़ा सा बताओ, और इसी सवाल पे हमारे 100 में से 90 लोग तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के बारे में कुछ अच्छी चीजें बताने के लिए वो कैसे यूजफुल है, उन्होंने जिंदगी में क्या क्या अचीवमेंट्स करी है, उन्होंने क्या क्या अच्छी चीजें करी है, वो सिर्फ एकेडमिक के रिलेटेड नहीं, वो उनके घर में हो, उनके गांव में हो, उनके कॉलेज में हो, उनके फ्रेंड सर्कल में हो। लेकिन ये बच्चे ढंग से बता भी नहीं पाते हैं उनके खुद के बारे में, क्योंकि उन्होंने उनके सारी जो एकेडमिक ग्रेजुएशन डिग्री है वहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करी है, और वो एक्स्ट्रा चीजें नहीं करने की वजह से उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, और जब वो सामने आ जाते हैं, सडनली वो इंडस्ट्री के सामने आ जाते हैं तो वो नहीं बता पाते। और हमें ये चाहिए कि बच्चे ऐसे हो कि जिनका खुद का पर्सनालिटी ग्रूम हुआ हो, डेवलप हुआ हो, वो आजू बाजू के एनवायरनमेंट से बात करना जानते हो, खुद ने कुछ अच्छी 4 चीजें करी हो, पढ़ाई के लिए ही नहीं, बाकी कोई भी चीजें हो सकती है जो समाज के लिए अच्छी हो, जो उनके फ्रेंड्स के लिए अच्छी हो, या जो भी हो, लेकिन वो नहीं बता पाते हैं। और यही एक नहीं है, ऐसे और सारी चीजें हैं, और वो खरा वही उतर पाता है जिसने सचमुच मेहनत करी है, जिसने कुछ काम किया है। एंड दिस इज व्हाट इज देयर प्रॉब्लम। सो ऑन वन साइड वो ये कहते हैं कि हमें बच्चे नहीं मिलते, और दूसरी साइड बच्चों का भी सही है, वो कहते हैं कि हमने 4 साल से इतना मेहनत किया, हमने इतनी पढ़ाई की, हमने इतने बुक्स पढ़े, हमने ये क्वेश्चन पेपर लिखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि आपके इस तरीके की वजह से आपका बाहर की दुनिया के साथ, इंडस्ट्री के साथ वो जो कनेक्शन नहीं हो पाता है। आपको इंफॉर्मेशन तो है, आपको सब्जेक्ट की जानकारी है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सचमुच किस तरीके से उस इंडस्ट्री के लिए काम आएगा या सोसाइटी के लिए कैसे काम आएगा, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं उस सब्जेक्ट का असलियत में यूज कहां पे है, वो कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में आपकी जानकारी नहीं होती है। और ये गैप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक साइड में हमारी ये पूरे यंग ग्रेजुएट्स, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरे साइड में इंडस्ट्री को ग्रो करना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। तो इसी को गैप कम करने के लिए वी आर कमिंग आउट विद another solution, and we are also scientific जुगाड़ फंडा। द साइंटिफिक जुगाड़ फंडा, इसके जरिए हम इंडस्ट्री, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, इन्वेस्टर, इंक्यूबेशन सेंटर, सबको हम इकट्ठा लाते हैं। इंडस्ट्री की तरफ से हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स मिलते हैं हमारे पोर्टल पे, जो हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। सो ग्रेजुएशन करते वक्त ही बच्चों को आसानी हो जाती है कि सचमुच बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, मैं जो पढ़ रहा हूं और उस इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है उसमें मैं तालमेल कैसे कर सकता हूं, क्या मैं अपने लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूं, इंटर्नशिप ढूंढ सकता हूं, प्लेसमेंट ढूंढ सकता हूं। अगर मैंने कुछ किया, उनके लिए कुछ काम करने की मैंने अगर कोशिश करी जिसकी वजह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो 4 साल के एंड में मेरे पास सचमुच बताने के लायक कुछ तो होगा। सो इस तरीके से जुगाड़ फंडा जो है वो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, जिसके जरिए आप इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट, मेंटर, इन्वेस्टर, इन सब के साथ जुड़ सकते हो। एक नजर डालते हैं कि हमारी ये जो सोशियो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है, हम जिस समाज में रहते हैं वो काम कैसे करता है, जॉब कैसे क्रिएट होते हैं, हमारा एजुकेशन हमें किस काम के लिए मदद करता है। तो यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो हमारी सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं, ओके, वी आर ऑल द पीपल। हम में से कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोगों का पढ़ाई हो गया, कुछ लॉयर है, कुछ वकील है, कुछ डॉक्टर है, कुछ फार्मर है, बट वी आर ऑल पीपल। हमें क्या चाहिए फाइनली? हमें एक अच्छा घर चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, अच्छा क्लोथिंग चाहिए, क्लीन पानी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चाहिए। वी नीड अ हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ लाइफ। सो ये सेफ लाइफ करते वक्त हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारी नीड्स होती है, हमारे वांट्स होते हैं, हमारे चैलेंजेस होते हैं। तो ये जो सारी हमारी समस्याएं होती है, से फॉर एग्जांपल हमारी एक समस्या है कि अगर सपोज मैंने मेरे दांतों को स्वच्छ नहीं रखा तो मेरे दांत खराब हो जाएंगे, अगर दांत खराब हो जाएंगे तो मैं अच्छा खाना नहीं खा पाऊंगा, तो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगी, तो मेरा जो लाइफ है वो हेल्थ मेरा कम हो जाएगा। तो किसी ने ये सोचा कि अगर ये दांत साफ करने का तरीका है, तो दे इन्वेंटेड अ ब्रश। किसी कंपनी ने ब्रश निकाला,
उस ब्रश की वजह से उस एक ही आदमी का नहीं, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, और जिस वजह से दे वेर एबल टू अर्न मनी फ्रॉम योर साइड। सो बिजनेस और इंडस्ट्री फाइनली क्या करता है, वो समाज के आपके और हमारे जो भी प्रॉब्लम होते हैं, उन प्रॉब्लम के ऊपर वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल, एक समस्या अभी है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, दूसरी समस्या है कि पेट्रोल एक नेचुरल रिसोर्स है, किसी ना किसी दिन वो खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तो अभी बैटरी टेक्नोलॉजी किसी ने ढूंढ निकाली, इलॉन मस्क है, उन्होंने बहुत सारी मेहनत करके दे हैव डन समथिंग ऑन व्हीकल कार। अभी शायद थोड़ी सी कीमतें ज्यादा है, लेकिन थोड़े दिन में जब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी कीमतें भी कम हो जाएगी। सो वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो आपकी समस्या को समझ रहे हैं, वो उस हिसाब से प्रोडक्ट या तो सर्विस डेवलप कर रहे हैं और वो आपको दे रहे हैं, जिसके बदले में आप उनको पैसे दे रहे हो। सो ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री हमेशा क्या करती है कि ये इंडस्ट्री हमेशा आपके प्रॉब्लम्स को समझ के उसके प्रोडक्ट तैयार करती है। अभी ये इंडस्ट्री खुद में तो नहीं चल सकती, इसके लिए स्किल्ड मैन पावर या वर्क फोर्स की जरूरत है, उनको जॉब करने वाले लोगों की जरूरत है, क्योंकि वो जो एक दो लोग होते हैं जिनके दिमाग में आइडिया आता है और वो सोचते हैं कि मैं ये बहुत सारे लोगों से भी मैं बेटर कर पाऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग में जो आइडिया है उस आइडिया पे मुझे गुलाम की तरह काम करने वाले लोग चाहिए, मुझे जॉब सीकर्स चाहिए। सो ये जॉब सीकर्स है वो कहां से आते हैं? ये जो जॉब सीकर्स है ये हमें एकेडमिक एजुकेशन से, क्योंकि बहुत साल पहले हमारे यहाँ पे वो गुरुकुल सिस्टम थी। गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था कि उस बच्चे को होलिस्टिक या ओवरऑल ट्रेनिंग दिया जाता था, लेकिन जैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, जैसे ये इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स करने वाले लोग बढ़ने लगे, उनको जरूरत पड़ने लगी काम करने वाले लोगों की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे अभी कुछ लोग चाहिए जो सिर्फ मैकेनिकल पे काम करेंगे, कुछ लोग चाहिए जो सिर्फ केमिकल पे काम करेंगे, कुछ लोग सिर्फ कंप्यूटर, कुछ लोग सिर्फ अकाउंटिंग। तो जिसकी वजह से इनको डिवाइड करने की वजह से मैं मेरी कंपनी ढंग से बढ़ा पाऊंगा, and then I can have more people who can work, and that's why in the education today we have got different branches। हमने उसको ब्रांचेस में कर दिया है। So जैसे ये ब्रांचेस वाले हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं, वो यूज करते हैं, and then what the company does is, कंपनी और उसके जो सोचने वाले लोग हैं, जो ब्रेन है उनका, वो हमेशा ख्याल रखते हैं कि समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं। ओके, एनवायरमेंटल हो गए, बाकी सिचुएशन की वजह से हो गए, और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स में चेंज करूं। जब उनका प्रोडक्ट चेंज होता है, जब उनके काम की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, तब पुराने वर्कर्स के बजाय दे वुड लाइक टू रिमूव देम, हैव सम न्यू फ्रेश पीपल, एंड उनको लेके वो आगे बढ़ते हैं, बट दे ऑलवेज ट्राई टू रिमेन एट द टॉप। लेकिन हम लोगों को जिस तरीके से तैयार किया जाता है, मोस्टली वी आर ऑल फोकसिंग ऑन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, और हम ये सोचते हैं कि ये एग्जाम पास करने की वजह से मुझे जॉब की काबिलियत मिलेगी, लेकिन ऐसे नहीं हो पा रहा है। आप में अभी वो क्षमता चाहिए जिसकी वजह से आप उस इंडस्ट्री का काम करने के लिए लायक हो जाओ, या तो उस इंडस्ट्री के ग्रोथ में अगर आप उसमें भागीदार हो जाओ तो इंडस्ट्री आपको कंटिन्यू आप अपने यहाँ रखने के लिए तैयार है। इंडस्ट्री कैन सपोर्ट यू फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो एजुकेशन में एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट बिल्ड करें, आपके पास आर्ट्स और स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दे दे, सो दैट आप एक अच्छी व्यक्ति करके आ जाए, या तो फिर आप खुद की इंडस्ट्री शुरू करो या किसी इंडस्ट्री में जॉब करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज अभी जो है, आपने अगर ये एडिशनल इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन ये नहीं कर पाए तो आपको जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, साथ साथ अगर आप खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है? इसके लिए जरूरत है कि आप ये जो छोटे छोटे सर्कल्स में जो सारे देख रहे हो, इंडस्ट्री है, इन्वेस्टर है, मेंटर है, फिर यहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, फिर इंक्यूबेशन सेंटर्स है, इन सबको इकट्ठा लाने की जरूरत है। और इनका एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर हो सकता है तो आप एक अलग व्यक्ति बन के उभर सकते हो, एंड देन यू विल बिकम क्वालिफाइड टू गेट अ गुड जॉब और अ गुड सर्विस, और यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। लेकिन आपको इन सब से एक्सपीरियंस शेयर करने की अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए। सो दिस इज हाउ इज अबाउट द ओवरऑल इकोसिस्टम। एक जगह पे हम है, दूसरी जगह पे एजुकेशन है, तीसरी जगह पे इंडस्ट्री है। अगर हम उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट डिजाइनिंग में या तो सर्विस डेवलपमेंट में मदद करने के लिए काबिल नहीं है,
तो हम इंडस्ट्री के लिए जॉब नहीं देगी, इंडस्ट्री हमें जॉब नहीं देगी इसके लिए. So this is what is a small thing. Why we are conducting this? Because whenever industry wants to employ anybody, आपको जब वो जॉब देने की सोचते हैं तो आप में वो ये चीजें मेनली देखते हैं. आपकी डिग्री जरूर इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो इंडस्ट्री क्या सोचती है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन तो आपको अभी नेट पर भी बहुत सारी अवेलेबल है. अगर मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आज गूगल है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो मैं वो इंफॉर्मेशन जरूर पता कर सकता हूं. लेकिन सबसे जरूरी है कि वो इंफॉर्मेशन मैं अप्लाई कैसे करूं, वो इंफॉर्मेशन यूज करके मैं कौन से इंडस्ट्री का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, उस इंडस्ट्री का काम करने का तरीका क्या है, उनके प्रोडक्ट क्या है, उनके सर्विसेज क्या है, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है. हम लोग वो पेपर पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, जाके एग्जाम में लिख देते हैं, लेकिन इसका असलियत में उपयोग कहाँ है, इसके बारे में जानने का हम खुद को मौका नहीं देते, या तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. इंस्टीट्यूट काफी कोशिश भी करती है, फैकल्टी भी काफी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को ये कई बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, या तो कई बार अभी तक का जो पैटर्न है, इंडस्ट्री भी बच्चों को एंटरटेन नहीं करती है, क्योंकि बच्चे वेल प्रिपेयर्ड होके वहां नहीं जाते हैं. वो बोलते हैं कि हम सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आए हैं. आजकल सर्टिफिकेट को से ज्यादा आपको खुद ने क्या ज्ञान हासिल किया है, और आप अगर वो एक्सप्लेन कर पाते हो, तो उसके लिए जितना इंपॉर्टेंस है उतना सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं है आपके. सो आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल है, टीम वर्क है, लिसनिंग एंड इंटरप्रिटेशन एबिलिटी है, प्रॉब्लम को समझने की, उसको लिखने की, उसको सॉल्व करने की, उसको एनालाइज करने की जो काबिलियत है, क्षमता है, वो आपके लिए जरूरी है. और अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कॉमर्स से हूं, मैं आर्ट से हूं, मैं आईटी से हूं, तो मैं इतना ही काम कर पाऊंगा. नहीं, एक आईटी इंजीनियर को मैकेनिकल के बारे में भी थोड़ी जानकारी होना जरूरी है, उसको कॉमर्स की भी जानकारी होना जरूरी है. जैसे आप बाजार में जाते हो मोबाइल लेने के लिए, तो आप मोबाइल में ये सोचते हो कि आई वांट अ मोबाइल with a big screen and a good battery backup and a graphic processor and a lot of memory and a very lightweight and I need it very slim. So आपको बहुत सारे and चाहिए, सारी चीजें आपको उस मोबाइल में चाहिए, और आप ये सोचते हो कि मुझे वो कम से कम कीमत में मिलना चाहिए. तो वैसे ही आप जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, तो आप जब बाहर मार्केट में जाओगे, तो इंडस्ट्री भी मांगती है कि इसी बच्चे ने मेरा जो वर्कशॉप है, टेक्निकल डेवलपमेंट है, वो करना चाहिए, एंड ही शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स टू माय कस्टमर, एंड ही शुड बी एबल टू मेंटेन माय मशीन्स करेक्टली, एंड ही शुड बी एबल टू अपडेट मी द थिंग्स करेक्टली, एंड ही शुड बी एबल टू वर्क करेक्टली विद दिस वन. सो इंडस्ट्री आल्सो एक्सपेक्ट सो मेनी एंड फ्रॉम यू, एंड दैट्स व्हाई these are all the key employability skills. I want you to note down these all points, take a screenshot of this, and then we will let you know कि ये स्किल्स कैसे हासिल किए जा सकते हैं. इन स्किल्स को हासिल करने का तरीका क्या है, प्रोबेबली आपके क्वेश्चन आंसर के दरमियान हम इसको बता पाएंगे. और इसीलिए महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स हैज कम आउट विद बिजनेस सॉल्यूशन पॉलीक्लिनिक प्रोग्राम. तो इसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चों तक, इंडस्ट्री तक पहुंचाया जाए, और जो बच्चे सचमुच अच्छी तरीके से काम करेंगे, हम उनके लिए एडिशनल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिला के देंगे. और ये प्रोग्राम जहां पे एक साइड से इंडस्ट्री कनेक्ट होती है, दूसरे साइड से उस इंडस्ट्री के मेंटर्स कनेक्ट होते हैं, तीसरे साइड से इन्वेस्टर्स होते हैं, चौथे साइड से आप होते हो, इंस्टीट्यूट होते हो. तो ये प्रोग्राम सबको इकट्ठा लाता है, एंड देन इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू आइदर टू फाइंड अ गुड जॉब और गुड स्टार्टअप. These are our education system के कुछ problems हैं. Maybe इसमें जो subject पढ़ाया जाता है, आप मोस्टली मेमोरी बेस्ड एजुकेशन है, आप में स्किल नहीं डेवलप हो पाता है. वैसे ही इंडस्ट्री के भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैन पावर, मनी, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिसी एब्सॉर्प्शन, और इसके लिए अगर आप उनकी मदद कर पाते हो, तो वो जरूर आपको एब्सॉर्ब की तैयारी रखते हैं. We are working on connecting 50,000 students in Maharashtra, and we are planning to get them connected with the industry so that we can find manpower, we can create those job opportunities for them. So we are working on this particular pilot project.
लेकिन अगर जॉब नहीं मिल पाता है, so does it mean that everything is finished? No, there are so many new opportunities opening up. So many new opportunities opening up. It is possible for you to start creating your own business. शायद आपको वो बिजनेस 2 साल में इतना रिटर्न दे सकता है जो शायद आपकी 10 या 20 साल की सर्विस में भी आप नहीं कमा पाते हो। लेकिन इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत है? क्यूरियोसिटी है, कनेक्शन है, नेटवर्क बिल्ड करना है, उनको कोई कुछ तो वैल्यू एडिशन करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। Then you should be able to have an ability to grab the opportunities, create the business model, and then you will be able to do. आप में क्षमता बहुत है, लेकिन आज जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, this is what expectations of industry. आपका ये पहला साल है, you are entering into the first year. आपके सामने 4 साल है, तो इस 4 साल में तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो ये मैसेज देने के लिए इंडस्ट्री की तरफ से हम लोग यहाँ पे आए थे, बट अभी मैं ये प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ एंड देन आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चंस। एक्चुअली ये महाराष्ट्र चेंबर के कुछ प्रोडक्ट्स है, बिजनेस सॉल्यूशन पॉलीक्लिनिक प्रोग्राम जो इंस्टीट्यूट लेवल के लिए, जहाँ पे बच्चों को, फैकल्टी को ट्रेनिंग के लिए इसमें आसानी से दे कैन मेक यूज ऑफ दिस। दूसरा जो प्रोग्राम है वो इंडस्ट्री कनेक्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे बच्चों को मौका मिलता है कि वो इंडस्ट्री के पास जाए, उनके प्रॉब्लम समझे, उसको आर्टिकुलेट करे, डॉक्यूमेंट करे और उनको बताए कि मैं आपको किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। इंडस्ट्री रेडीनेस इंटर्नशिप है, ये 4 महीने का प्रोग्राम है जहाँ पे बच्चों को उन प्रॉब्लम्स पे काम करने का मौका मिलता है कि जो उनके लिए पसंद लगता है, जो वो करना चाहते हैं, जिसकी ताकत उनमें, जो उनको अच्छा लगता है। So that's how they work with the mentor and then they can tell industry how they would like to solve the problem for the industry. Enhancing employability skill, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जब उनको पता लगता है कि अरे मुझे इसका इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, सो वो नॉलेज इन डेप्थ गेन करने के लिए देयर आर प्रोग्राम्स कॉल्ड एज एन एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। कई बच्चों को लगता है कि नहीं, मुझे बिजनेस अच्छी तरीके से करने का नॉलेज आना चाहिए, सो वी हैव गॉट दिस नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट which is able to lead you towards creating something of your own. आप खुद का बिजनेस, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके घर से ही बिजनेस हो। और कई बार लोग सोचते हैं कि बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, मतलब बहुत पैसा चाहिए। नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी, देयर इज ह्यूज मनी, ह्यूज फंडिंग, लोग पैसा देने के लिए तैयार है। सिर्फ आपकी जो आइडिया है, आपका जो सोल्यूशन है, आपका जो बिजनेस है, वो उतना काबिल होना चाहिए, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट दिस वन। सो दीज आर सम ऑफ आवर प्रोडक्ट जिनको है एक्चुअली इंस्टीट्यूट लेवल के लिए दे कैन बी गेट कनेक्टेड दिस प्रोग्राम। अगर आपकी इंस्टीट्यूट कनेक्ट हो रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन आल्सो विजिट साइंटिफिक जुगाड़ फंडा and you can be part of this. So thank you very much. With this I'd like to conclude the session, and I think we are open now for I would like you to keep on asking the question. आप हिंदी में पूछो या चैट विंडो में आप पूछो, so that it becomes easy for me, क्योंकि हमने जो मैसेज देना था वो हमने दे दिया है कि you are supposed to work closely with industry, you should have those employability skills. लेकिन अगर जॉब मिलने की क्षमता नहीं है तो you can also create your own startup, you can create your own business. इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी आइडिया, सॉल्यूशन, उसका भी एक तरीका होता है। So anyway, once you are part of certain programs, then we can take that thing ahead. So I think we are open for now question answer. Hello sir, so before starting for the question answers, our second mentor, that is Shubhangi ma'am, she is very much here, so I will just I request Shubhangi ma'am to please turn on your video. Yes, it is. Oh yes ma'am. Okay, so Yeah. I'll just before Namaste, starting madam. with the question answer Namaste. session, ma'am, I request you to briefly introduce yourself to our participants today. Okay. नमस्ते, हिंदी और इंग्लिश या मराठी? English and Hindi. हिंदी मैडम। हिंदी, ओके। नमस्ते, मैं शुभांगी तिरोडकर, वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ये 93 ईयर ओल्ड एपेक्स चेंबर है, जहां उनका चेंबर का विजन है कि जो व्यापारी है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको और गवर्नमेंट में जो दुआ बनना है वो काम वो करते हैं। उनकी तकलीफ है, उनकी कठिनाई है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और उनको कनेक्ट
कर देते हैं कलेक्टिवली, क्योंकि इंडिविजुअल हम जब कोई एफर्ट करता है उसका इतना असर नहीं पड़ता है जितना हम कलेक्टिवली एक प्लेटफॉर्म पे आके करते हैं। दूसरी बात, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं पहले ही आपसे माफी मांगती हूँ, इट्स नॉट इंटेंशनल, लेकिन हो सकता है तो गलती को माफ करना मेरी हिंदी के लिए। चेंबर ऑफ कॉमर्स हम पूरे 36 जिले में महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, गोवा में है, और काफी एक्टिविटीज करते हैं। हमारा वी बिलीव दैट आप कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है, जो भारत के भावी एंटरप्रेन्योर्स होंगे, तो आपको ऐसा ना होना चाहिए कि आप कॉलेज में एक किताबी पढ़ाई कर रहे हैं और जब ये एक्चुअली आप बिजनेस में आएंगे या इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको टोटल डिफरेंट पिक्चर्स देखने को मिलेगा, जैसे हमको मिला। आवर जनरेशन, what we were taught in the colleges and when we came there, बट मैं बोल देती हमारी पीढ़ी ऐसी थी कि जो कुछ है वो हम सहन करते थे और ये ऐसा ही होने वाला है ऐसे मान के we were going ahead। लेकिन अभी आप लोगों को ऐसा नहीं है। इंटरनेट has taught you so much of things, only you have to understand which is the कौन सा रास्ता आप चूज करें ताकि आपका जो स्वप्न है, आपका ड्रीम है, आपका जो गोल है उसी तरह आप जाएंगे। नहीं तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे और आपका गोल सामने होते भी आपको वो रास्ता नहीं मिलेगा। और वो ही काम जुगाड़ फंडा और चेंबर ऑफ कॉमर्स मिलके कर रही है। और मेरी आपसे विनती है कि आप लोग ये अभी मनीष जी ने जो बताया वो ठीक तरह से समझ के आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स आप उनसे पूछे। एज योर कॉलेज, एज अ टीम टुगेदर, be a part of Maharashtra Chamber also, and together we can, हम जब बोलते हैं कि भारत महान देश होने वाला है, वो कैसा होने वाला है जब हमारे बच्चे पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएंगे तभी। और वो करना हमारा चेंबर का कर्तव्य है। दैट इज आवर विजन, ये हमारा ध्येय है और वही हम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू मनीष जी। Yeah, thank you. So Archana ma'am, I think you must have received some questions. आप अगर आपके पास जो सवाल आए हैं उनसे कुछ सवाल अगर पूछेंगे तो हम मैडम है यहाँ पे, हम कोशिश करेंगे कि उनका हम समाधान करें। Yes. Yes sir. Does job experience, sir, I am audible, right? Yes. Does job experience matters to get the good job? But at the start, as a fresher, we don't get the experience. So how we can crack this? Okay, so yeah, so it is like job नहीं है इसलिए experience नहीं है, और experience नहीं है इसलिए job। Yeah, hello. मेरी आवाज आ रही है? Yeah. So मैडम, ये सवाल ऐसा है कि experience नहीं है इसलिए job नहीं है और job नहीं है इसलिए experience नहीं है, तो अब इसको कैसे किया जाए? So I will hand over to you, ma'am, please. Okay. I will tell, मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे को जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मैं BSc हूँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो मेरे को यही था कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मेरा जब भी बेटा 10th स्टैंडर्ड में पास हुआ, हमारा बिजनेस का 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया, दूसरे दिन से वो दुकान में आके बैठना शुरू किया और वो काम 3 महीना उन्होंने काम किया, खुद का दुकान था। लेकिन तभी उनके फ्रेंड्स थे, उनको मैंने वही बोला कि आपको क्या बनना चाहिए। किसी ने बोला मेरे को CA बनना है, कोई बोला मेरे को इंजीनियर होना है। तो मैं उनको बोला कि ठीक है, आपने सोचा है CA होना है तो व्हाई डोंट यू गो टू अ CA's ऑफिस, और जो कुछ काम आपको पड़ेगा, भले वो आपको फाइल इधर से उधर करने वाला है, लेकिन पूरे 8 घंटे में कुछ तो आपके कान के ऊपर पड़ेगा कि यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लाइफ ऑफ अ जॉब इन CA। या आपको इंजीनियर करना है तो आपके आसपास में ऐसे छोटे मोटे फैक्ट्रीज रहते हैं, दे विल नॉट पे यू बट दे मे थोड़ा कभी कभी आपको किसी की पहचान होती है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ।
वो आप करके, आपकी इच्छा है ना तो आपको मार्क मिलेगा। और नॉर्मली क्या होता है, मंथ ऑफ अप्रैल में काफी लोग छुट्टी पे जाते हैं कंपनी को, सो दैट टाइम दे नीड पीपल टू वर्क फॉर 2 months 3 months। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं, मैं आराम से कुर्सी पे बैठूंगा, मेरे को केबिन चाहिए, एसी चाहिए और चाय मेरे को सामने, that will not happen because you are learning, and when you do that at the end of that term, आप वो आदमी को बोलेंगे कि भाई साहब मैंने आपसे काम किया है, मेरे को खाली एक लेटर देना कि मैंने ऐसे। so those kind of recommendation letter when staff come to me for job, आप, मेरा क्वेश्चन रहता है कि आप 3 साल बीकॉम कर रहे हैं, आपका कॉलेज का टाइम कितना है, 7 से 10 बजे, उसके बाद आपने क्या किया? नहीं, टाइम पास किया। तो जो आदमी अपने एन जिंदगी का टाइम पास करने में है, वो आदमी को मैं कैसे पास करूं? because that is the time you have to learn things, that is the time you have to experience and understand कि ये मेरी, मैं सोचता था या मैं सोचती थी कि ये मुझे करना है, लेकिन अभी मेरे को पता चला कि ये मुझे नहीं करना है। और ये नहीं करने वाली लिस्ट से जब भी कम हो जाते हैं, देन आपको चॉइस सी, बिकॉज आई हैव सीन मेनी बीकॉम पीपल आफ्टर डूइंग, अभी मैं क्या करूं, अभी मेरे को एमबीए करना है, फिर या कोई बीए इंजीनियर बोलता है कि अभी मैं एमबीए करूंगा और फाइनेंस में जा। आईआईटी पीपल, अभी वो 3 इडियट्स की स्टोरी है, आईआईटी के एमबीए के बैंक में लगती है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग फॉर 4 years इन इंजीनियरिंग? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये सब इंजीनियरिंग के बच्चे हैं ना? राइट मिस्टर मनीष? हाँ, तो आपने पहला क्वेश्चन है, आपने इंजीनियरिंग क्यों चूज किया? वो मनीष जी ने बताया आपको रहेगा, वो चूज किया, अभी नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। तो अभी इसके आगे आप क्या करने वाले हैं, और वो आपके ड्रीम से मिलता जुलता है कि नहीं? क्योंकि एट एज ऑफ 35 आप सोचेंगे अभी मेरे को ये नहीं करना है, तो मुश्किल है, पॉसिबल है लेकिन तो मुश्किल है। तो अभी आप सोचेंगे कि मेरे को इंजीनियरिंग करके मेरा बिजनेस करना है, मेरे को जॉब करना है, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को और कुछ करना है, मेरे को बैंक में जाना है, मेरे को आईएएस होना है, जो कुछ है वो अभी से उसका, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम, इंजीनियरिंग को भी टाइम मिलता है, मेरा बेटा इंजीनियर था, कितना टाइम उनके पास होता है, खाली वो जब सबमिशन रहता है तभी वो दिन रात काम करते, रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे हैव गॉट टाइम, तो वो टाइम यूटिलाइज करो। ओवर टू यू मनीष। थैंक यू। मैडम ने जो कहा, मैं उन बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। सो उनके कहने का समरी ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके आजू बाजू में आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। मुझे पता है कि शुरुआत में शायद आपको दिक्कत होगी, लेकिन इस वजह से महाराष्ट्र चेंबर ने ये जो बिजनेस सॉल्यूशन पॉलीक्लिनिक प्रोग्राम लॉन्च किया है एकेडमिक इंस्टीट्यूट के थ्रू, वो आपको पहले तो ट्रेन करवाता है, वो आपकी मदद करता है कि आप जब इंडस्ट्री के पास जाओ तो थोड़ी से तैयार होके जाओ। सो यू शुड बी रेडी। रेडी इन व्हाट सेंस कि मैं आपके पास कोई अनड्यू मदद नहीं मांगने के लिए आया हूं, मैं इनफैक्ट आपकी मदद करने की क्षमता रखता हूं और मुझे ये चीजें बताई गई है, तो इसमें मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूं, तो आप मुझे अपनी समस्या तो बताइए, तो मैं फिर सोच सकता हूं कि इसमें से मैं किस समस्या पे काम कर सकता हूं। तो अगर आप ये अप्रोच लेके अगर आप आगे जाते हो तो महाराष्ट्र चेंबर, साइंटिफिक जुगाड़ फंडा दोनों आपकी मदद के लिए रेडी हैं। और इस तरीके से इस इंजीनियरिंग करते वक्त अगर आपने ये थोड़े से इंटर्नशिप कर लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 6 महीने का 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप ये नहीं कहना पड़ेगा कि अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं इसलिए जॉब नहीं है और जॉब नहीं है इसलिए एक्सपीरियंस नहीं। And that's why this program will be able to take out from that. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. So, Archana ma'am, can we have the next question? Or yes, sir. Yes. Ma'am है, उनको भी कोई सवाल पूछने हैं तो ma'am, you are welcome to ask the questions. क्या अर्चना ma'am next? Yes, sir. Next question is that how to handle failures and not get demotivated. अच्छा, हाउ टू हैंडल फेल्यूर। हाँ, वो एक्चुअली मैं आपको मेरी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं खुद 12th स्टैंडर्ड में एक बार फेल हो चुका हूँ, मैथ्स का पेपर मैं नहीं क्लियर कर पाया था, और जब इंजीनियरिंग में मैं फर्स्ट ईयर में आया तब मेरे 10 में से 9 सब्जेक्ट्स में मैं फेल हुआ था।
वहां पे भी मेरा 1 साल फेल हुआ था। उसके बाद 6 बार, मतलब इंजीनियरिंग के बाद 6 बार मैंने स्टार्टअप करने की कोशिश करी, तब भी मैं फेल हो गया। लेकिन आज 7वीं बार मैंने मेरा खुद का जो एक बिजनेस है, अर्गो ऑप्टिक्स नाम का जो प्रोडक्ट है, दैट आई वाज एबल टू लॉन्च। सो फेल्यूर और सक्सेस ये जो है ना, ये आपके दिमाग में है। फेल्यूर का मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा है, मैं उसको ऐसे देखता हूं कि उस वक्त, उस दायरे में, उस सिचुएशन में मैं कुछ चीजें नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी कुछ अच्छी चीजें करने के लिए काबिल नहीं हूं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं क्या चीजें अच्छी कर सकता हूं, मैं कहाँ पे वर्क कर सकता हूं, ये मैंने ढूंढ के मैंने उसके पीछे थोड़ा सा वक्त लगा दिया, and then I was able to do the things good for me, for the society, for the people and for the family. So failure और सक्सेस ये तो थोड़ा सा समाज का नजरिया है। हो सकता है 2-4 लोगों के हिसाब से हम सही नहीं है, लेकिन हम अगर ढंग से झांके तो हमारे अंदर काफी जो खूबियां है, अगर हम उसके ऊपर कुछ काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये फेल्यूर हैंडल करना इतना मुश्किल बात है। लेकिन शुभांगी मैडम ने भी काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, so I will request her to say a few words on this topic, please, ma'am. हाँ मनीष जी, let me first make very clear कि failure is the step towards success. इसका ये मतलब नहीं कि आपको फेल होना ही है, लेकिन काफी लोगों को बीच बीच में कि वो रास्ते के दिए के अंदर आपने पढ़ाई किया, या पर अभी जो व्हाट्सएप पे जो घूम रहे कि आपको रिक्शा वाले की बेटी या बेटा होना चाहिए, तो ये आप IAS पास करते हो। दैट इज वन ऑफ द थिंग which is a example, which is people or मीडिया इज गिविंग, सबको बता रही कि मुश्किल भी हो, मुश्किलें भी हो, तो भी आप वो पार करके आपका ड्रीम अचीव कर सकते। सो दैट इज द मीनिंग, बट आई नो 1 or 2 कि नहीं फेल हुआ कुछ नहीं, डाउन, दिस इज द माय वे पाथ टुवर्ड्स सक्सेस। अभी दूसरी बात है, दिस इज माय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, बिकॉज समहाउ मेरा नेचर है कि बच्चों के साथ आई वाज इन्वॉल्व, नॉट आई वाज टेकिंग स्टडीज और समथिंग, वो मेरी बात, बट उनका डे टू डे लाइफ का थिंकिंग जो था ना सब बच्चों का, उनके फ्रेंड्स का, तभी मेरे को एक समझा कि व्हेन दे पास आउट 12th नॉर्मली दे गेट, यू मस्ट हैव आल्सो गॉट गुड मार्क्स। उनको लगता है चलो 12वीं में मेरे को 90% मिला, 95% मिला, आई एम, मेरे को सब कुछ जमता है, बिकॉज यू हैव वर्क। कॉलेज इंजीनियरिंग में आप आते हैं या हायर कॉलेज में आप जब भी आते हैं, तभी आपका एक तो कॉलेजेस लेट शुरू हो जाते हैं, और फर्स्ट टर्म इमीडिएटली, at least that time it used to come in October, so hardly 1-1.5 महीना, by the time you understand कि कैसे कॉलेज का इंजीनियरिंग का चलता है, लैब किधर है, क्लासरूम, ये समझते में आपकी एग्जाम आ जाती है। वर्नाक्यूलर सब्जेक्ट में होते हैं उनको मुश्किलें होते हैं, हाउ, बिकॉज इंजीनियरिंग का और 12वीं का इसमें बहुत ही फर्क है, which a person when he enters only he will understand। तो मेरी ये राय है कि आपको 80 KT आप बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन विदाउट दैट इफ यू पास, इट मेक्स अ good impression when you go for any scholarships or when you go, because certain scholarships insist कि आपको 80 KT नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आपको 80 KT ना मिले, इसके लिए आपको बहुत कष्ट लेना पड़ेगा, लेकिन इट इज इजी। आपके अर्लियर पेपर जो रहते हैं वो आप सॉल्व करो, आप किसी ने आपके कॉलेज के प्रोफेसर उनसे आप लिख लो, वो करेक्ट करके लेना। सो दे विल गिव, उनका स्पेशल फॉर्मेट रहता है, जैसे 10th में रहता है एक स्टाइल टेक्निक रहता है, 12th में रहता है, और इंजीनियरिंग का भी एक टेक्निक रहता है। वो टेक्निक आपको समझना चाहिए, सब्जेक्ट आपको समझता है, लेकिन वो पेपर में लिखने का टेक्निक आपको समझना चाहिए। और वो टेक्निक समझने के लिए आपको एक ही, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स, राइट द पेपर्स, maybe 2 or 3 sets, get them checked either with your college professors। मोस्टली कॉलेज प्रोफेसर को ये तो नया ही रहेगा कि कोई स्टूडेंट आके मेरा पेपर चेक करो ऐसे बोल रहा है, बट आई डिड दैट फॉर माय सन। और वो चेक करने के बाद यू गेट एन आइडिया कि ओके ठीक है, मेरे को 50 मिलना है, 60 मिलना है, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आई कम, दे वर वेरी ब्रिलियंट, अरे मेरे को सब आता था, मेरे को ही मालूम नहीं मेरे को 30 मार्क कैसे मिले।
तो 30 मार्क मिले, उनको सब्जेक्ट मालूम नहीं था इसलिए नहीं मिले, उनको सब्जेक्ट अच्छी तरह से पेपर में लिखना नहीं आया इसलिए मिले। वो टेक्निक आप शुरू से, एक बार आपको टेक्निक समझ जाएगा, 4 years will really go like very easy. That's it. Thank you. So Sir, there is next question and here. we can have another two. Yes. Hello, sir. Yeah. Go ahead. So next question is, sir, I am from electronics background. How do I get an internship in core domain or core company? अच्छा, ओके, इसके ऊपर मेरा इनपुट ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप शुरुआत में आपने कोई ब्रांचेस वगैरह चूज किए हैं, हम जानते हैं कि आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में आप उनका डीप में स्टडी करोगे, कोई भी डोमेन हो, वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, आईटी हो, केमिकल हो, दिस ऑल इज ओके। लेकिन सबसे आजकल जो जरूरी बात है कि आपको उस कंपनी का, कोई भी कंपनी जो प्रॉब्लम्स है, उसके जो डिफिकल्टीज हैं, शुरुआत में आप उनको ग्रैब करो। वो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की है या सिविल की है या मैकेनिकल की है, इसके ऊपर शुरुआत में आप ध्यान मत दे दो। आप उनके साथ जुड़ जाओ, कनेक्ट हो जाओ, एंड देन यू कैन थिंक कि इनमें से कुछ प्रॉब्लम क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा जो ज्ञान है उसे यूज करके क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वैसे ही मैकेनिकल का है, वैसे ही सिविल का है। सो शुरुआत में जब आप काम करना शुरू करोगे, सो डोंट कीप दिस इज इन माइंड कि अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं, अलग से सिविल वाली है, अलग से मैकेनिकल वाली है। ये तो ब्रांचेस तैयार किए गए थे करीबन 200 साल पहले, क्योंकि उस वक्त जरूरत थी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ था तब उनको स्पेसिफिक डोमेन वाइज लोगों की जरूरत थी। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इस तरीके से इंटीग्रेट हो रही है, जिस तरीके से ये डेवलपमेंट हुई है, सारी चीजें नेटवर्क से, इंटरनेट से जुड़ रही है। सो सचमुच रियलिटी में अगर मैं बोलूं कि ये जो रोबोटिक सर्जरी है, अभी रोबोटिक सर्जरी को आप क्या बोलोगे? वो मैकेनिकल है, वो इलेक्ट्रिकल है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कि वो कंप्यूटर वालों का काम है, या वो आईटी वालों का काम है, या वो मेडिकल वालों का काम है? इसमें से कोई भी एक जन इसके साथ नहीं जुड़ सकता। सारे लोग इकट्ठा आए बगैर ये मेडिकल सर्जरी डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स इन्वेंट नहीं हो पाए। सो आपको ये जरूरी है कि यू मस्ट मेंटेन योर इंटरडिसिप्लिनरी वर्किंग एबिलिटी। और शुरुआत में जब आप किसी भी इंडस्ट्री से बात करोगे, काम करोगे, तो पहले ये बाजू में रखो कि मैं सिविल का हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूं, मैं मैकेनिकल का हूं। यू जस्ट गो देयर कि मैं डिग्री होने के बाद मुझे किसी कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और आप इस तरीके से अगर अप्रोच रखोगे तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल। लेकिन शुभांगी मैम having lot of experience, I think it will be great if she can also share some of her inputs and the views on this one. Yeah, Manish ji, I mean, you really said it correctly. This is a time because you have to prepare for your whatever future you have the dream. तो एक तो आपको इंटरनेट के वजह से you have got, there are so many sites है, टेड टॉक्स है, बुक्स है, कि आपका फील्ड का, आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे अभी रोबोटिक की बात की, तो रोबोटिक्स में हमारे पहचान वाले हैं इंजीनियर, उनका पिताजी का फैक्ट्री ऑटोमोबाइल का था, बट ही इन द फैक्ट्री, वो कॉलेज में जब इंजीनियरिंग पढ़ता था तो वो रोबोट के ऊपर काम करता था, और उन्होंने अभी 3 रोबोट्स बना दिए, ही इज गिवन इट टू प्राइम मिनिस्टर आल्सो, और वो उनका औरंगाबाद के ही है। औरंगाबाद का हॉस्पिटल में उन्होंने वो कोविड के टाइम पे रोबोट दे दिया है। तो ही व्हाट डिड ही डू, उन्होंने ऐसा रोबोट बना दिया जो सामान हॉस्पिटल में एक एरिया से दूसरे एरिया तक लेके जाएगा, और कोविड के टाइम अंदर पेशेंट के साथ नहीं जाता, तो मेडिसिन हर एक पेशेंट के पास जाके वो दवाई उनको देता था। Now this is a simple mechanism, but he thought about the situation, क्या मांग करती थी, what was the requirement of the situation during COVID, कि आदमी, हर एक आदमी वो पीपीटी के रहते को दवाई दे दो, उसका छोटा रोबोट जाके कॉट नंबर 7 के पास जाके हाथ से उनको दवाई देता था। So ये जो application of knowledge था, and that is what is required। और एक बात है, अभी जो आप
कुछ गलती करेंगे, कुछ ब्लंडर्स करेंगे, तो इट इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट. बट व्हेन यू आर इनटू जॉब और व्हेन यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, दिस ये आप सोचेंगे 10 बार ये मैं करूँ या ना करूँ, और उसमें टाइम निकल जाएगा. यहाँ एट द मोस्ट क्या लोग बोलेंगे, अरे क्या तूने पागलपन किया है कि, बट यू गॉट दैट एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर ऑल्सो, एंड यू योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि मैंने क्या रॉन्ग किया, मैंने जल्दी की क्या, मैंने पूरा उसका आई हैवंट रियली थॉट अबाउट द प्रोसेस, और आई जस्ट आइडिया मेरे दिमाग में आई, वो आइडिया की कल्पना आई तो चलो फटक से मैं उसके ऊपर करूं, मैंने उसका, तो ये चीज आप समझ जाते हैं. और सॉफ्ट स्किल्स जो है, आप किस तरह से पैराफ करते हैं, आप क्या बात कैसे बात करते हैं. मे बी सम पीपल हैव गॉट अ हैबिट ऑफ टॉकिंग वेरी फास्टली, तो सम टॉक वेरी सॉफ्टली. तो ये इसके लिए भी काफी ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ऑफलाइन भी है, फ्री है, पेड है. इम्प्रूव योरसेल्फ. आपके जो फ्रेंड्स है या आप खुद आपका वीडियो करके देख लेना कि आप कैसे किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि ये चीज कोई बताएंगे नहीं, लेकिन आपका जो इम्प्रेशन होता है वही आपको अल्टीमेटली आपके ऑर्डर मिलने के लिए, भले वो बिजनेस में हो या जॉब में हो, वो फायदा होती है. और तभी आपको टाइम नहीं रहेगा ये करने के लिए. अभी टाइम है तो पॉलिश योरसेल्फ. जो पॉलिश बोलते हैं ना, वो आपको खुद को करना चाहिए. ओवर टू यू मनीष. मनीष, वी कांट हियर यू. Sir, you are on. सुनाई नहीं दे रहे. Hello, sir. Yes. Am I audible now? Yes, sir. Now you are audible. Yeah. So I can see, Archana ma'am, there are 2 more questions, and I think we will take these 2 questions and then we can conclude the session, right? Yes, sir. Yeah. So should I ask the next one? Yes. Next question, please. Yeah. Sir, during college itself, how one can improve the industry network? So as we are talking about internship or good job opportunities after completing the graduation, so how to improve the industry network? See, इसी वजह से महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, आप प्रिंसिपल से थोड़ा सा बात कीजिए. आपके जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ So your voice is breaking. कीजिए, and training@masya.org.in. दोबारा ब्रेक हो गया. हाँ, yes sir, your voice is not. नहीं सुनाई दे रहे. Okay, so आप उनसे बात कीजिए, और we are open to enable the students to be part of such program wherein we are coming out with कि एक इंस्टीट्यूट के 50 बच्चों को, 2 फैकल्टी को हम बिना किसी कॉस्ट के इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं. ओके, सो आप इंस्टीट्यूट से बात कीजिए, प्रोफेसर्स है जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है, एंड देन यू कैन डेफिनेटली गेन बेनिफिट्स एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, जहां 2 महीने के लिए आपको ये इंडस्ट्री कनेक्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए भी आप शामिल हो सकते हो. अगर आपका इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है तो यू कैन जस्ट विजिट आवर साइट and then you can be part of this particular program. So no worries with this particular part. So to this, I would like to add that yes, if anyone is interested to get the internships, or anyone is really interested to solve real life industrial problems, then we are very soon, that is from 15th of March, we are starting with our new batch of Industry Connect internship program. At the end of this session, I will be sharing the contact details. So that they can WhatsApp us to get more detail about it. Okay. So next question is very domain specific. That what are the career prospects for civil engineer? So to this, I would like to answer that today's session was explicitly on internship and startup stuff. For domain specific insight and details about it. So from 1st March, we are starting domain specific session. And definitely you can follow us on our Instagram page, and I will be sharing that detail also, so that you can get to know what all upcoming sessions and session of your interest. You can register, which is free of charge, and you can attend the session to get detail about the specific domain. हाँ, उसमें वहाँ पे आपको डोमेन, उसके अपॉर्चुनिटीज, वहाँ पे जॉब कौन कौन से हैं, आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए,
तो ये सारी चीजों का वहां पे डिस्कशन होगा और उस डोमेन के जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट भी वहां पे अवेलेबल होंगे। सो ये डोमेन वाइज सेशंस मार्च महीने के शुरुआत में होगा। सो आई थिंक अर्चना मैम विल बी एबल टू अपडेट यू। एक सवाल यहाँ पे मुझे दिख रहा है अर्चना मैम की स्टार्टअप कैसे शुरू करना चाहिए, यू नो। I will I think Shubhangi ma'am also will speak, but I'd like to give one small input from my side. सबसे पहले तो आप चेक करो कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। Whenever you say that you are creating a startup or creating a new business, that means you are introducing a new product or new solution. So ये product या तो solution कौन से problem को address कर रहा है, okay? What is that problem? Then how many people have the similar problem? Okay, just check out that one, because if more are the number of people having the same problem, more are the chances of success of your business. Next, the third is उसकी financial जो viability है, जिसको आप business model canvas बोलते हो या तो उसको cash flow statement बोलते हो, so वो थोड़ा सा अगर आप तैयार कर सकते हो, and then अगर आप उसको लिख सकते हो कि इसको शुरू करने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए और इसको यूज करके मैं इस तरीके से कंपनी ग्रो करना चाहूंगा, तो वैसा फंड करने वाले काफी सारे लोग हैं। लेकिन ये आपकी जो आइडिया है, ये आपका जो सॉल्यूशन है, काम करने का तरीका है, उसके लिए आपने जो नेटवर्क खड़ा किया है उसका रेफरेंस है। सो आई थिंक यू डेफिनेटली देयर आर ग्रेट चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल। बट Shubhangi ma'am also we would like to share few of the things. राइट, स्टार्टअप सबको स्टार्टअप शुरू करना है, लेकिन कंटिन्यूटी भी चाहिए जो बिजनेस है। तो स्टार्टअप, लोगों को लगता है स्टार्टअप शुरू करो, देन पीपल विल स्टैंड एट माय डोर विथ मनी एंड आई विल गेट लॉट ऑफ वेंचर कैपिटल। मैं एकदम मेरा ऐसा ग्राफ एकदम सीधा ऊपर जाएगा। इट इज नॉट एज मनीष जी सेड, व्हाट इज द नीड ऑफ योर of the society at that given moment and how long it will be there. Suppose you have come with the product, like वो आपको स्टोरी मालूम ही रहेगी, वो कोडैक वाले उनका कैमरा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, बट व्हेन मोबाइल came, the कोडैक का वो धीरे धीरे कम होता था, बट कोडैक पीपल वो अपनी मस्ती में थे कि नहीं मेरा तो नंबर 1 है तो मेरे को कुछ, then ultimately they had to face the problem. स्टार्टअप की जब भी आप बात करते हैं, स्टार्टअप आइडिया और सॉल्यूशन, वो पेन पॉइंट जो बोलते हैं लोगों का, वो आप सॉल्व करने के लिए, बट हाउ लॉन्ग विल इट विल बी रिक्वायर्ड। लाइक जैसे अभी कोविड के टाइम पे एवरीबडी वाज इनटू हैंड सैनिटाइजर एंड दैट मशीन एंड ऑल दैट, बाद में वो कम हुआ। इट वाज द नीड एट दैट टाइम, बट देयर वर पीपल हु रियली इन्वेस्टेड ऑन having, I know many कि कुछ भी डब्बे लाए, वो सैनिटाइजर बना दिया। काफी लोग उनको ज्ञान उसका नॉलेज भी नहीं था, बट वो 10 लोग कर रहे इसीलिए मैं 11 हुआ, लेकिन बाद में वो बंद हो गया बिकॉज बिग पीपल केम इनटू। तो आपकी आइडिया जो रहती है वो एक्सक्लूसिव आइडिया होनी चाहिए, और दैट यू हैव टू वर्क कि कितना मैं पैसा डालूं, कितना टाइम डालूं, कौन मेरे को मदद करने वाले हैं, और वो पॉसिबिलिटी क्या है टू रीच माय एंड गोल, और मैं कब तक सस्टेन रह सकता हूँ, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। नहीं तो शुरू स्टार्टअप्स बहुत होते हैं, इंक्यूबेशन ये आपके कॉलेज में भी शायद रहेगा, लेकिन वो इट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स, और इट डजंट स्टार्ट ओनली, वो इनिशियल स्टेज में रहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि 10 लोगों ने स्टार्टअप किया इसलिए मेरे को करना है, ये नहीं है। मेरा नेचर क्या है, वो स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। सेल्फ को आपको देखना चाहिए कि मेरी वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरे को थ्रेट्स क्या है, और वो आप करेंगे तो ये आपका, और इसके लिए काफी मदद करने वाले लोग हैं। ये कहाँ के हैं? एक औरंगाबाद के, राइट? दोंडाईचा। ओके, तो औरंगाबाद में आपको CMI ऐसे कुछ औरंगाबाद में बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट औरंगाबाद के ही है, उनका नाम दाशरथी सर है। तो उनका बहुत बड़ा उधर फैक्ट्री ऑटोमोबाइल में है, और ये लोग मैजिक है ना उन्होंने शुरू किया है। yes, हाँ, तो यू एक्सप्लेन अबाउट मैजिक, सो एटलीस्ट दिस इज द, यू आर एट द राइट प्लेस कि आप इन लोगों से भी जुड़ सकते हैं। मनीष जी आपको बताएंगे, और कॉलेज होने तक
आपका काफी विचारों में बदलाव आएगा जो जरूरी है अभी के दिस में. मनीष जी, can you tell them about Yeah. Magic? See, Magic Aurangabad is nothing but Marathwada Growth Accelerator for Technology Entrepreneurs. So इस तरीके से उसका वो Magic का लॉन्ग फॉर्म है, और वो एक इंक्यूबेशन सेंटर है जिसके लिए गवर्नमेंट ने करीबन 5 करोड़ की मदद दी है. और आप में से जो हुनर वाले लड़के हैं, हुनर वाले जो बच्चे हैं जिनके पास ये काफी सारी आइडियाज वगैरह हैं, वो वहां पे जाके उसको वहां पे वो अपनी आइडियाज को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फंडिंग और ये भी अवेलेबल होगा, प्रोवाइडेड आपकी वो आइडिया उतनी दमदार हो. सो दिस इज ऑल इज अबाउट मैजिक. एंड आई थिंक अर्चना मैम, we have came to almost conclusion of our So there is session. there is But one question, sir. So there is one more question from student Sheikh Tohir, that how we can improve our skills in industry level. या सी, इसके लिए हमने जो ये बिजनेस सॉल्यूशन पॉलिक्लिनिक प्रोग्राम और ये जो 2 महीने का ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम रेडी किया है महाराष्ट्र चेंबर की तरफ से, वो प्रोग्राम से आप उसके साथ जुड़ सकते हो. मैडम ने आपको वेबसाइट, इंस्टाग्राम, इसके रिलेटेड डिटेल्स आपको दिया है, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओ. और ये जो आप जब उसके साथ काम करोगे तो नेचुरली आपको वो ट्रेनिंग भी मिलता है कि मैं इंडस्ट्री के साथ कैसे जुड़ूं, मैं इनके प्रॉब्लम कैसे कैप्चर करूं, मेरे लिए उसमें से क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें आपको उसमें से पता होगी. एंड अभी ये जो हमने पोल लॉन्च किया है वो इसलिए किया है कि हमें पता चले कि क्या इस तरीके के सेशन हमें करनी चाहिए. अगर आप सबकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स आता है तो ही हम लोग ये कंडक्ट कर जारी रखेंगे. सो इसीलिए फीडबैक है. सो प्लीज वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू अगेन गिव. सिर्फ एक ही सवाल है, अगर आपको लगता है कि इस तरीके से सेशन होनी चाहिए, इस तरीके के इनपुट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की तरफ से, डोमेन स्पेसिफिक लोगों की तरफ से होने चाहिए, लेकिन इसका एक ही बार उपयोग हो सकता है कि आप लोग जितने सवाल ज्यादा पूछोगे उतना बेनिफिट आप कर पाओगे. अगर आप चुप बैठोगे तो आपको ये सीखने के लिए नहीं मिलेगा. और ये जो आपके सवाल ना पूछने की जो आदत है ना, ये शायद आपको जिंदगी में आगे चल के तकलीफ दे सकती है. तो आपको इंटरेक्ट करने के लिए आना चाहिए. आप डरो मत, कोई भी सवाल गलत नहीं होता है. सो आप में, मेरे हिसाब से तो आप में बहुत ज्यादा क्षमता है और आपको आगे आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड यू शुड बी रिस्पॉन्डिंग टू द थिंग्स करेक्टली. सो आप सवाल जरूर पूछना. एंड आगे जब हम चेंबर की तरफ से प्रोग्राम करेंगे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा सवाल पूछेंगे, एंड देन you yourself are going to help to you only. So that's how is my message. So my last message to all of you is wish you all the best. आप इंजीनियरिंग के पहले साल में हो तो आपको ये करियर तरीके से जाए. You we all for the best and progress and the success in you. So ma'am, would you like to give Yes. a last message? Yeah. Yes. First, let me congratulate all the students because COVID के टाइम में आपने एग्जाम दी, फिर आपने अनलिमिटेड टाइम तक आपने वो रिजल्ट्स के लिए राह देखी. उसके बाद भी इतनी अनश्योरिटी थी कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है. तो आपने ये पूरा, आपका पेशेंस के लिए मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि हमारे पास तो इतना पेशेंस नहीं है. जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. वेट एंड वेट रियली किल्स यू, एंड यू हैव क्रॉस दैट हर्डल. वो जब कठिनाई पार करके आप यहाँ तक पहुंचे, itself shows that you are the most intelligent and the most वो क्या हमारे मराठी में बोलते हैं ना, लवचिक लोग है कि आप कुछ भी कर सकते हैं. ये पहले आपके भरोसा है. दूसरी बात है कि वो ऐसे बोलते हैं असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी. तो इफ यू आर गोइंग टू, अभी आपने क्वेश्चंस नहीं पूछे तो आपको लगता है कि मैं उधर बैठने वाला हूँ 4 साल इंजीनियरिंग पास, फिर मेरे को नौकरी आराम से मिलने वाली है. होने वाला नहीं है. पहले मैं आपको ठीक तरह से बता रही हूँ, आपको अपने लिए खुद काम करना पड़ेगा. आपको अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा. पीपल लाइक मनीष जी, जुगाड़ फंडा, महाराष्ट्र चेंबर आर देयर टू गाइड यू, बट दे विल नॉट हेल्प यू. दैट इज आपकी हेल्प खुद को करनी चाहिए.
और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रीजन था इसीलिए मेरे को नहीं जमा, या ये होता था तो मैं कर सकता, तो ये कोई भी किसी भी आदमी को वो सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, बट यू विल बी स्पॉइलिंग योर लाइफ। तो मेरा यही कहना है कि आप आज से, अभी से आपको खुद इम्प्रूव करने के लिए, आपके गोल रीच करने के लिए, आपका ड्रीम पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, and you have to make other people work for you. That is most important. Thank you and all the best. Thank you, ma'am. Thank you. So, Archana, ma'am, I think me and Shubhangi, madam, we will take a leave. You can just share the Sir, final words in and then sir, you just- can take it. Hello, Hello, sir. Hello. sir, just a Huh. moment. Yes, Sir, yes, yes. actually from Uh, High-Tech Institute, Institute Coordinator, Mr. Amol Adkine, sir, he is present. So I request Amol, sir, to kindly unmute yourself and share vote of thanks. No, I think abhi koi or, there was somebody else who was. Lady. Ma'am. Yes. Hello, ma'am. Bhavna? Hello, Yes. हाँ sir. Yes, yes, yes. Myself, Professor Bhavna Vispute. Oh, yes, madam. Actually, Yeah. हाँ, I have a lot of questions in my mind before this session, but Okay. now I got my idea clear. Now, sir, I would like to thank for providing such nice session. Sorry, And ma'am. Sorry to lot interrupt of you. knowledge. Kindly start your video. Sorry to interrupt you, but please start your video. Okay. Okay. Hello. आप वीडियो चालू कर सकते हो मैडम, so that हाँ. Yes. Sir, on the behalf of High-Tech Institute of Technology, Aurangabad, I'm very thankful to Mr. Manish sir, Shubhangi ma'am, and Archana ma'am for providing such nice session, lot of knowledge and motivation to our students. Thank you so much. Now I hand over to Adkine sir, Thank you, madam. please. Yeah. Thank you. Nice to see you, ma'am. Yeah. Okay, thank you, sir. Yeah. Adkine, sir. Adkine, sir. Are you there? नाव आहे का Sir. बघा. आहे नाव आहे मे बी काही इश्यू असेल. Okay, sir. Ma'am, with your permission, shall we conclude the session? Yes. Okay, so या ओके. भावना मॅडम माईक किंवा याला थोडासा अडचण आहे, त्याच्यामुळे बहुतेक सर बोलू शकत नाही. सो थँक्यू व्हेरी मच, and if anything you please let us know, and happy to have an MOU understanding with your institute, provided you also believe that this industry relation interaction is important and we can take it ahead correctly. Okay. yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Shubhangi, ma'am. Thank you, everyone. Bhavna, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you. And we Nice. hope the session was knowledgeable and useful for all our participants. We will soon issue your certificates and hand it to your coordinator. Kindly give us a week's time. And if you have any query, or if you want to know any detail about domain specific sessions and all, please follow us on Instagram page, that is at jugaadfunda_innovations, which already I have typed in the chat box for exciting updates. And also from 15th March, we are starting with Industry Connect internship program. So those who are interested, they can join the same. And thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, Bhavna, ma'am. So I will be ending the session. Thank you very much.